Now we'll start chapter 20, heights and distances. From ML Agarwal for class 10th for ICSE for session 2025-26, and this is the lecture number 2 of this chapter. First 17 sums हमने first lecture में कर लिए थे. Now we will start from question number 18. Yes, Samriddhi, a man observes the angle of elevation of the top of building to be 30 degree. A man observes angle of elevation of the top of the building to be 30 degree. He walks towards it. उसकी तरफ चला. In a horizontal line through its base. On covering 60 meter, the angle of elevation changes to 60. Find the height of building correct to nearest meter. First of all, you have to draw the diagram. And a man observed the angle of elevation of top of tower. Man यहाँ पे टावर का टॉप ये है. Observe the angle of elevation 30 degree. Here angle is 30 degree. He walks towards it in a horizontal line. यहां से यहां तक पहुंच गया. कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 मीटर. Take it as D point. The angle of elevation changes to 60 degree. This angle becomes 60 degree now. We have to find the height of building correct to the nearest meter. Let it be X. BD is to be taken as Y. Total is 60 plus Y. Yes or no? Yes, sir. Now how we can find X? Yes, Sambhavi. मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आपने लिखवाना है जो भी लिखवाओगे. कॉमन साइड है ए बी. Yes. फिर हम फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी के लिए निकाल सकते हैं. In right angle triangle ABD. तो फिर एक्स बाई वाई. First of all, you have to write down AB upon BD. Here, this is perpendicular. This is yes. and P upon B is tan 60. tan 60. This is X. This is Y. Tan 60 is root 3. But we get X is This is y root 3. take it as Equation number 1. and equation number 1. उसके बाद in right angle triangle. हाँ, in right ABC. ABC. वो होगा x by 60 plus y. AB by वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस. फिर x by 60 plus y. tan और tan 30 नहीं हाँ 30 हाँ tan bigger 30. triangle is this one. हाँ सर. This is X. BC is 60 plus Y. Tan 30 is 1 by root 3. And from here X we get 60 plus y by root 3. ये है इक्वेशन नंबर 2. फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 y root 3 equal to 60 plus y by root 3. Left hand side is equal, then right hand side is also equal. That is y root 3 is equal to 60 plus y upon root 3. Root 3 is 3y. इक्वल टू 60 प्लस वाई. फिर 2y इक्वल टू 60. फिर 6 y इक्वल टू 30 है ना. हाँ 30 meter. But we have to find the value of x. Then how we can find? फिर fill in first or second. First में ज़्यादा easy है. ठीक है. Put the value of y in equation first.
x is y root 3, that हाँ. is 30 root 3. हम्म. 30 into 1.732. Multiply these two, 6, 9, 21, 2, 5, 51.96 meter. But they asked to find in nearest meter. Then what is the answer? 52 meter. 52 meter. That is the height of the tower. Is it okay? Same method जो हमने छोड़ा था पीछे, वही मेथड यूज हुआ. आई थिंक सो. अब तो सबको आ गया होगा ये अच्छी तरह से. हाँ सर, इजी है. यस सर. हरिदीप, परनीत, रोहिन, प्रिया. यस. यस सर. प्रिया को तो ना मम्मी ने बोला हुआ है कि बोलना नहीं है, बस गर्दन हिलाते रहना है. अगर बोलेंगे तो बहुत ही स्लो सा, कि उसी को आवाज ना सुन जाए प्रिया की. क्वेश्चन नंबर 19. यस, परिधि. And this is the important one. At a point on the level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12. Its tangent is given. On walking 192 meter toward the tower, the tangent of the angle is found to be 3 by 4. Find the height of the tower. At a point on the level ground, the angle of elevation of a tower. This is a tower. यहाँ पे, यहाँ से, at a point. Its tangent is found to be 5 by. This angle is to be taken as theta. And what is given? Tan theta is given. Tangent of, ऐसे लिखा है ना? That means tan theta is given 5 by 12. On walking, यहां से 192 मीटर कवर किया इस साइड. Such that इस टेंजेंट, इस एंगल को हम अल्फा ले लेते हैं. कुछ भी लेट कर लो, थीटा 1, थीटा 2, मैंने अल्फा ले लिया. हमें tan अल्फा गिवन है 3 by 4. Name it as A, B, C, D. Find the height of tower. Height of tower को क्या लेट करें परिधि? एक्स. X. BC, Y. सर. BC को Y लेट कर देते हैं. तो what is BD? 192 प्लस वाई. 192 plus Y. Now what I can do? हमें तो कुछ और ही दे दिया यहाँ पे. सर हमें पता है टेन अल्फा इक्वल 3/4 और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम लोग अब थीटा के अकॉर्डिंगली which is our perpendicular? थीटा के अकॉर्डिंग. Theta is this angle. सर ए बी. AB and base is डी बी. DB is 5 by 12. मतलब उन्होंने हमें ऑलरेडी आधा सम सॉल्व करके दे दिया. पहले हम 10, जो लास्ट सम किया था उसमें यही था सेम. बस वहां पे क्या था, एंगल्स गिवन थे 30 एंड 60. हम 10 30 लगा रहे थे, 10 60. अब यहाँ पे वैल्यू गिवन है. AB is x, BD is 192 plus y is 5 by 12, and x we get 5 into 192 plus y upon 12. Take it as first equation. Same here, tan alpha. सर According to alpha, which is a perpendicular? ए बी. AB, and the base is, बी सी. we get 3 by 4. AB is x, BC is y, 3 by 4, and x we get 3y upon 4. This is the second equation. From equations first and second. 3y/4 equal 5 bracket 192 plus y/12. Left hand side equal है, तो right hand side is also equal. 192 plus y upon 12 is equal to 3y upon 4. थोड़ा इजी करें. इस 4 को मैं सीधा यहाँ पे कट कर दूं 3 से. अब 5 2 are 10, 1 carry 45 46, 4 carry 5 4 9 plus 5y is equal to 3 become multiply on this side, 3 3s are 9y.
960 is equal to 9y minus 5y, 4y, and y we get 960 upon 4. Cut these. 4 2 are 8, 16, 4, 0. y की वैल्यू 240 आ गई. फर्स्ट में फिल करने, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में ज्यादा इजी है अभी. Put in equation second. x is 3y, y के प्लेस पे 240 आ जाएगा अपॉन 4, 4 6, 63 are 180 meter. Therefore, height of tower is 180 meter. 180 meter. That is our answer. समझ आया बच्चे ये सम? हाँ सर. कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस इज देयर, बट थोड़ा सा इन्होंने लिखने का वे डिफरेंट दे दिया, टेंजेंट एंगल दे दिया. मतलब tan, इसको थीटा लिया तो tan थीटा गिवन है, और इसको मैंने अल्फा ले लिया. वो आप पे डिपेंड है, आपने थीटा 1, थीटा 2, अल्फा, बीटा जो भी लेने हैं आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है रोहिन? अंडरस्टूड? यस सर. यस ना ऐसे बोलता है पूरे गुस्से में. यस सर. नाउ reach on question number 20th. Yes, Rohin. Now figure is given. This is the figure. In the figure, not drawn to scale, TF is tower. The elevation of T from A is X, where 10x is given. AF, पूरा AF given है हमें 200 meter. The elevation of T from B is, where AB is 80 meter is y degree. ये y degree दिया है. Calculate the height of the tower TF. The angle of y correct to the nearest degree. एंगल भी फाइंड करना है और हाइट ऑफ टावर भी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले फिगर, जो फिगर हमें गिवन है, टी एफ बी ए, this one. This angle is given x, this angle is given y, and AB is given, नहीं sorry, हाँ, AB is given 80 meter, AF is given 200 meter. We have to find this and y. अब देखो x ऑलरेडी यूज हो रहा है, एंगल के प्लेस पे लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, स्मॉल h लेट कर लेते हैं. BF कितना आ जाएगा? यस रोहिन? सर 120. यस. टोटल माइनस AB, AF minus AB, that is 200 minus 80, we get 120 meter. तो BF की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, that is 120. Now we have to find H. हमें गिवन क्या है, 10x is given. Now 10x 2/5 गिवन है. x के 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब x के अकॉर्डिंगली, x एंगल के अकॉर्डिंगली, which side is the perpendicular in this figure? क्या सर? 10x is here. According Yes. to angle x, which side is the perpendicular? सर TF. TF. And base is? सर AF. Very good. 2/5. TF is h. AF is 200. Is 2/5. From here, h we get 2/5 into 200. 40. h की वैल्यू कितनी आ गई, 42 are 80 मीटर. फर्स्ट आंसर हमारा आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल y. ये कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूं, आपने नीचे करना है. मुझे ये है कि फिगर दिखती रहे आपको. यस बच्चे. नाउ हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल y? सर
tan y equals 80 tan upon बाद में बेटा, चाहे BF अपॉन TF कर लो, चाहे TF अपॉन BF कर लो, वो बाद में देखना होता है कि tan बनेगा कि cot बनेगा कि क्या बनेगा। पहले दो साइड्स गिवन है ना, yes sir TF अपॉन BF। yeah अब y के अकॉर्डिंगली दिस साइड इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस, tan y, TF is 80, this is 120, tan y, अब 0 से 0 4 के टेबल पे 2/3, tan y इस साइड लिख दिया, 2/3 को डेसिमल में करेंगे 0.666 एंड समथिंग। अब टेबल में से देखो tan की वैल्यू 0.67 कहां पे है, टेंजेंट 0.67 नियर अबाउट, मतलब है ये रही 33 डिग्री 48, और ये कितना होगा 82, मतलब 50 मिनट पे। बट टेंजेंट ऑफ 33 डिग्री, 34, 33 35 डिग्री लगा लो, नहीं 67 है ना, सॉरी 67 है, 33 डिग्री नियर अबाउट 50 मिनट्स पे, ठीक है, 0.666 एंड समथिंग। कंपेयर किया दोनों को, व्हाट वी गेट, y इज 33 डिग्री 50 मिनट्स। मुझे आंसर चेक करने दो इसका 20 का। इन्होंने 34 डिग्री दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट ये कितना हो गया, 34 डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने एक्चुअल में राउंड ऑफ नहीं किया ना इसको, दैट्स द yes रीजन। नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 21। परनीत, Yes, sir. in the adjoining figure not drawn to scale, AB is tower, this AB is given tower, and two objects C and D are located on the ground on the same side of AB. When observed from the top A से जब ऑब्जर्व किया, मतलब A से नीचे इन दोनों पॉइंट्स को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे ना, आर 45 एंड 60। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज गिवन, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। दिस इज द टावर, this is the path, two objects C and D are there, A B, यहां से इसका और इसका बेस के पैरेलल लाइन, this angle is given 45 and this complete angle is given 60, and height of tower is given 300 meter, this height is given 300 meter, then angle C is, yes Parneet, angle C कितना होगा, Sir, 60 degree. Sir, 45 degree. Z देखो, और ये 60 होगा, 60 ठीक है। degree. वी हैव टू फाइंड CD, तो इसमें हमें कॉमन साइड वाला फंडा नहीं यूज करना, क्योंकि कंप्लीट साइड हमारे पास है। BD अपॉन AB करके BD की वैल्यू आ जाएगी, CBC अपॉन AB करके BC की वैल्यू आ जाएगी, BC में से BD माइनस कर देंगे, बट वी गेट CD। तो पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, BD अपॉन AB, इसमें फर्स्ट फंडा एक्चुअल में यूज हो गया। BD इज परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, Sir, base. एंड AB, Perpendicular. B upon P is Cot. cot how much, Cot 60 degree. BD is we have to find AB 300, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, cot 60 is 1/√3, True. इसको ऐसे ही रख लेना है।
बाद में देखेंगे रैशनलाइज अगर जरूरत पड़ा तो। नाउ BC अपॉन AB। हाँ, पहले ट्रायंगल लिख देना, मैंने ट्रायंगल नहीं लिखा। BC is base, AB is perpendicular, that is again cot 45। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, AB 300 है एंड cot 45 is 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 300। 300. We have to find CD. How we can find CD now? Sir, BC minus BD. Yes, very good. BC की वैल्यू 300 आ गई मोटो, BD की वैल्यू 300/√3। अब एक काम करते हैं, एलसीएम भी ले सकते थे, एलसीएम से थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्या करो, यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ इसको, सेकंड टर्म को। 300 माइनस 300√3/3 कट किया 100, तो 300 माइनस 100 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। CD 300 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 173.2 आ जाएगा। सॉल्व करो। 0.8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 2 में से 1 गया 1। CD की वैल्यू 126.8 मीटर आ गई। बट इन्होंने दे आस्क्ड टू फाइंड इन नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में क्या बनेगा, ये 120। 127. हाँ, जो पिछला सम था ना बेटा, उसमें भी लिखा था y की वैल्यू नियरेस्ट डिग्री में, इसलिए उन्होंने राउंड ऑफ करके 34 डिग्री लिखा था। मैंने रीड नहीं किया, उन्होंने लिखा हुआ था द एंगल y करेक्ट टू नियरेस्ट डिग्री। नियरेस्ट डिग्री मतलब वो मिनट वाला पार्ट राउंड ऑफ करके 1, मतलब ये पिछला इंक्रीज हो जाएगा 1। ओके, एक सेकंड आया बेटा मैं। नाउ we will reach on question number 22. The horizontal distance between two towers is 140 meter. Yes, Ridhan. Yes, sir. Horizontal distance between two towers is 140 meter given है. The angle of elevation of top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. If the height of the second tower is 60 meter, find the height of the first tower. The horizontal distance between two towers is 140. Angle of elevation of top of first tower when seen from the top of second tower is 30. If the height of second tower is 60, find the height of the first tower. देखो, horizontal distance मतलब base distance, ये हमें given है 140 meter. The angle of elevation of top of first tower, मैं first tower बना देता हूं, when seen from the top of second tower is 30. ये एंगल हमें गिवन। दूसरा टावर मैं यहां पे बना लेता हूं। इफ द हाइट ऑफ सेकंड टावर इज 60 मीटर, अब हमें ये तो बोला ही नहीं इन्होंने कौन सा टावर बड़ा है। अच्छा, सॉरी, सारी फिगर गलत बना दी मैंने। फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर बोला था हमने, ग्राउंड के बेस से नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर, मतलब सेकंड टावर क्या है, स्मॉलर है। एलिवेशन बोला है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। अब सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप का एंगल देखा तो मतलब एलिवेशन बना, तो मतलब फर्स्ट टावर इज बिगर। ये फर्स्ट टावर बना दिया हमने। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 140 मीटर। सेकंड टावर इज दिस वन, ABCD। व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर, यहां से
इसके टॉप का एंगल, ठीक है रिदान? Yes, sir. This angle is given 30 degree. If the height of second tower is 60 meter, CD is given 60 meter. इस पॉइंट को E ले लेते हैं। तो 30 डिग्री बोला था ना, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बेस के पैरेलल, ठीक? तब ये एलिवेशन बनेगा वहां से। Yes, sir. हाउ वी कैन फाइंड AB? AB को हम x लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें हाइट ऑफ फर्स्ट टावर फाइंड करना है। व्हाट आई कैन डू? सो इजी। X. CD 60 है ना? Yes, sir. CD और BE इक्वल नहीं बेटा? Yes, sir. व्हाट इज दिस लेंथ? Sir, 60. सेम वे CE की लेंथ कितनी आ जाएगी? 140. 140। और AE की लेंथ कितनी आ जाएगी? X minus 60. X minus 60। वेरी गुड। देखो मैंने पहले बोला है, जो चीज फाइंड करनी है हम उसको x लेट करेंगे। मैं AE को x लेट करके फाइंड कर सकता था, बाद में 60 ऐड कर देता, पूरी हाइट आ जाती। बट कंफ्यूज हो ही ना कि x फाइंड हो गया, आंसर आ गया। तब इस राइट एंगल ट्राइंगल में AE अपॉन EC। व्हाट इज AE? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज रिदान। Sir, perpendicular. एंड EC? EC is base. P upon B? Sir, P upon V is tangent. Tan. 10. How much? Tan 30. Very good. A is x minus 60. EC is 140. Tan 30, 1 by root 3. X minus 60, 140. चलो अपॉन रूट 3। अब एक काम करो, यहीं पे इसको रैशनलाइज कर लो। 60 हम बाद में ले जाएंगे। x माइनस 60, 140 रूट 3 अपॉन 3। x माइनस 60, 140 इंटू 1.732 अपॉन 3। ये पूरा पूरा कट हो रहा है। 0.57 नहीं, गलत हो रहा है, तो वो कट नहीं होगा शायद। नहीं हो रहा। चलो अप्रोक्सीमेट लिख लेंगे ना, ये जरूरत नहीं है, छोड़ो। 0.83 आ रहा। इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेती है, मुझे ये तो बता दे। पता नहीं पक्का कैलकुलेटर? सर, नहीं है कैलकुलेटर। मोबाइल पे कर रही होगी। नहीं, अगर मोबाइल पे कर रहे होते तो मेरी वीडियो पॉज हो जाती। कॉपी पे सॉल्व है सर, आपको साथ ना तो फोटो भेज दिया करूंगी। हाय, चलो वेरी गुड। मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा? Yes, sir. टाइम ना वेस्ट करूं मैं इस पे। यू कैन डू द कैलकुलेशन। Yes, sir. हो जाएगा ना सबसे? Yes, sir. सर। यस सर। नाउ प्रिया, यस सर। जैसे ना किसी बीमार बंदे से बात कर रहे हो। यस सर, करके बोला कर। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर। कहां से? फ्रॉम द टॉप। किसके? 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। द एंगल ऑफ depression of two ships on the same side of the lighthouse in horizontal line it with base are 30 and 40 degree respectively. Find the distance between the two ships, give your answer correct to the nearest meter. ये लाइट हाउस है, सेम साइड बोला है, 2 points, 2 ships, sorry, this and this are the ships A, B, C, D. एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है बेस के पैरेलल लाइन 30 एंड 40। तो डी एंगल 30 होगा कि सी एंगल 30 होगा? यस,
D is 30. D is 30 and C is 40. 40. यहाँ पे भी ऐसे मार्क कर देना है 30 and 40. 80 meter tall. This is 80 meter. We have to find CD. Again same sum जो हमने पहले किया था. Same type of question is this one. BC upon AB करके BC की लेंथ आ जाएगी. BD upon AB करके BD की माइनस कर देना है. करेंगे कर लोगे? हो जाएगा? सर कर देंगे। यस सर। परिधि, Yes, sir. रोहिन, रिदान, प्रिया, प्रिया, हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। हाँ, शुक्र है। ओह, आवाज आई इसकी। प्रिया, तेरे से मुझे डबल फीस लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुझे बोलना भी सिखा रहा हूं मैं कि बोलना कैसे होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 24. The angle of elevation of a pillar from point A on the ground is 45 degree and from a point B diametrically opposite to A and on the other side of the pillar is 60 degree. Find the height of the pillar given that the distance between the A and B is 15 meter. देखो, angle of elevation of a pillar from a point A on the ground is 45 degree and from a point B diametrically opposite to A and on the other side of the pillar is 60 degree. Find the height of the pillar. Pillar की height find करनी है. Given that the distance between A and B is 15 meter. ये pillar है. The angle of elevation of pillar from point A. A point यहाँ पे ले लिया. Is 45 degree. This angle is given 45 degree. And from point B diametrically opposite to A. A के opposite diametrically. मतलब यहाँ पे. Other side of pillar is 60 degree. ये angle 60 given है. Find the height of pillar. AB, CD यहाँ पे लेंगे, क्योंकि AB खुद लिखा हुआ था ना उन्होंने, तो हमें A और B ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज PQ ले लिया या कुछ और ले लिया तो गलत हो जाएगा. CDX we have to find and the distance between A and B is given 15 meter. Yes, Priya. Yes, sir. AD को मैंने Y लाइट कर लिया, then what is BD? Small, no, y minus 15. Y is smaller, 15 is smaller or 5 is smaller? 15 minus y. Oh, very good. BD is 15 minus 5. Now, second funda, two right angle triangles are there. Yes, sir. Which side is common? A, ADC. ADC is not the side. Sir, I'm not understanding. What are you asking? Beta, this right angle triangle, CDB A and Yes. CDB. This triangle की three sides are which one? CD, AD and AC. This triangle की three sides, Oh, CD, okay. BD and BC. Huh. The common side in both the Common triangles. side is CD. Yeah, I have asked this one. First of all, in this right angle triangle, in right angle triangle CDA, CD upon AD. Yes, sir. This is perpendicular base or hypotenuse, CD, Perpendicular and AD, base. P upon B is Tan. How much? 45. 45. X upon Y. tan 45 की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? Y आ गई. Y.
Now in this right angle triangle. Now in right angle triangle, CDB. CD upon DB. Ah, Perpendicular upon base. Tan 60 now. CD is x, BD is 15 minus y. Tan 60 is root 3. X we get 15 minus y into root 3. Second. From first and second, x, left hand side is equal. hmm. Then right hand side is also equal now. Yes. That is y is equal to 15 minus y into root 3. Y is equal to 15 root 3 minus root 3y. Y वाली टर्म्स एक साइड पे 15 root 3. Y is common here. 1 plus root 3 is equal to 15 root 3. And y we get 15 root 3 upon 1 plus root 3. इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 3 प्लस 1, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस रूट 3 से करूंगा ना तो माइनस साइन आ जाएगा नीचे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एडिशन है, आगे पीछे कर सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ इन 7th क्लास यू हैव स्टडी। इसको बच्चे रूट 3 माइनस 1 से ऊपर, रूट 3 माइनस 1 से नीचे। व्हाट वी गेट 15 3s आर 45 माइनस 15 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2। इसको कैलकुलेट करना बेटा, रूट 3 की वैल्यू फिल करके y आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी, यही हमने फाइंड करना है। ठीक है, इन्होंने नियरेस्ट मीटर बोला है तो डेसिमल पार्ट को हम राउंड ऑफ कर देंगे। आगे समझ? Yes, sir. Now we'll reach on question number 25. Yes, Sambhavi. मुझे ये लगा सो गई कहीं संभवी, हाँ सर। मुझे ये लगा सो गई है कहीं, नहीं सर। आवाज ही नहीं आई तेरी। From two point A and B on the same side of building, the angle of elevation of the top of building are 30 and 60. If the height of the building is 10 meter, find the distance AB correct to 2 decimal. Simple enough. वही है पहले जो 24th या 23rd किए थे। सेम साइड, 2 points A and B. Angles of elevation are, top of elevation are 30 and 60. अगर गलती से भी यहाँ 30 ले लिए, यहाँ 60 ले लिए, गलत हो जाएगा। देखो जितना नजदीक जाते जाएंगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज गिवन 10 मीटर, वी हैव टू फाइंड AB। सेम BD अपॉन CD करके बेटा BD की लेंथ आ जाएगी। बोलिए संभवी। हाँ सर। AD अपॉन CD करके AD की लेंथ आ जाएगी। हाँ सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू कैन हाँ गेट द हाँ। वैल्यू ऑफ AB। हाँ हाँ। ना करूं? नहीं सर, नहीं चाहिए, मतलब मेरे लिए नहीं चाहिए। तेरे लिए नहीं चाहिए, बाकी को भी नहीं चाहिए होगा, है ना? रिदान समझ आया बेटा? Yes, sir. रोहिन, Yes, sir. मन्नत को तो सब कुछ आता ही है, मन्नत से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है तेरे खानदान में मैथ ही तेरे को आता है सिर्फ, है नहीं ना? सर, मुझे पूरे सब्जेक्ट्स आते हैं। सारे नहीं, मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी की तो मैंने बात ही नहीं की। हाँ, महक क्या करने लगी? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो उनकी 12th के एग्जाम्स चल रहे थे, अब खत्म हुए हैं। 12th में क्या लिया था उसने? 12th में साइंस।
साइंस मैथ मतलब मेडिकल। मैथ ली थी उनने, मैथ साइंस। अच्छा, मैथ साइंस मतलब नॉन मेडिकल। हाँ। बहुत तंग किया था उसने मुझे, इतना तंग किया था ना। एक उसकी फ्रेंड राशि, ओ हो बेस्ट फ्रेंड है। ना, उसने, उसको पता है क्या होता था राशि का? तो ये सारा सम करवा दिया, फिर से भी रिपीट कर दिया। किसी को कोई डाउट है? उस टाइम ना मेरे पास नियर अबाउट 30 स्टूडेंट्स की क्लास थी। राशि हमेशा, सर फिर से समझाना। तो इतना गुस्सा आता था। अभी तो वो नीट की तैयारी कर रही हैं, एग्जाम था अभी उनका। ओके, 26th. The angle of depression of two ships A and B, as observed from the top of a lighthouse 60-meter high, are 60 and 45 respectively. If the two ships are on the opposite side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So easy. Angle of depression of two ships A and B observed from the top of a lighthouse. This is a lighthouse. Two ships on the opposite side. एक इस side, एक इस side. Are 60 and 45. ये 60, ये 45. यहाँ पी क्यों नेम दे देता हूँ। हमें हाइट ऑफ लाइट हाउस गिवन है 60 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड ए बी। परिधि हो जाएगा ए बी फाइंड? यस सर। पक्का? हाँ सर। ए क्यू अपॉन पी क्यू करके, हाँ सर। बी क्यू अपॉन पी क्यू करके। ए क्यू की लेंथ आ जाएगी, बी क्यू की लेंथ आ जाएगी, दोनों को ऐड ऐड कर कर देंगे। ठीक है? हम्म। गलत है। क्या गलती है ढूंढ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिखा है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर। तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके अगर हम ये 60 और 45 नहीं डालेंगे तो सर चाहे आएगा सारा तो सेम ही ना। आंसर, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे सारा सम सही है फिर भी क्रॉस लगा देना है, क्योंकि आपने एलिवेशन बना दिया, डिप्रेशन तो बनाया नहीं। हम्म। उन्होंने बोला क्या है? डिप्रेशन बोला है ना। हम्म। मैंने जानबूझ के ये गलती की थी समझाने के लिए कि ये गलती करके नहीं आनी भाई एग्जाम में। ठीक है? टीचर तो ना तुम्हारे मार्क्स ढूंढेगी कहाँ से काटूं मैं, और हमने कोई चांस नहीं देना टीचर को कि मार्क्स कटे हमारे। ठीक है? हाँ सर। ये कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं ये वाली। बेटा हो जाएगा ये ए क्यू अपॉन बी क्यू, सिंपल ए क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बी क्यू अपॉन बी क्यू करके बी क्यू की आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देना, वी गेट द डिस्टेंस ए बी। इजी वन। यस सर। यस सर। रोहिन, यस सर। रिदान, Yes, sir. यस सर। रिदान समझ भी आ रहा है तेरे को? हाँ हाँ आ रहा है सर। आ रहा है। लास्ट ईयर वाराणसी से मेरे पास थे 3-4 बच्चे, आराध्या लड़की थी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27। An aeroplane at an altitude of 250 meters observes the angle of depression of two boats on the opposite bank of a river are 45 and 60. Find the width of the river. Write the answer. Same question is this one. Same. इसी मेथड से करना है। 250 मीटर हाइट एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है वर्टिकली। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन अपोजिट बैंक, एक इस साइड एक इस साइड। सेम फिगर इज दिस वन, जैसे ये फिगर बनी है सेम टू सेम, बस ये वैल्यू चेंज है और एंगल भी वही है। 6 वहाँ 45 हो जाएगा, वहाँ 60 हो जाएगा। कर लोगे? 27 फिगर की जरूरत तो नहीं है? No, sir. बिल्कुल सेम है। सर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग साइड से है क्या? अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ बेटा? एक उस साइड एक उस साइड, ओके सर। ये सेम। ठीक है? ओके सर।
सेम बोला होगा तब ये फिगर बनेगी, सेम साइड बोला होगा तो ये फिगर बनेगी। अपोजिट बोला है तो एक इस साइड एक उस साइड। अंडरस्टूड? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 28। आगे भी एंड पे बस थोड़े ही रह गए। फ्रॉम अ टावर 126 मीटर हाई, the angle of depression of two rocks which are in horizontal line to the base of the tower are 16 and 12 degree 20 minutes. Find the distance between the rocks if they are on the same side. अब इसमें दो क्वेश्चंस आ गए, सेम उस जैसे ही है, सेम ऑफ, ये दोनों सम से एक तरह से ये कह लो कि यहाँ पे डिस्टेंस ये फाइंड करना है तो दिस माइनस दिस, ये पूरा फाइंड करना है तो दिस प्लस दिस। दोनों फिगर्स बना के दो सम अलग अलग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करने हैं। करूं मैं कि कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे। ट्राई करना, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। सर इसमें कितने सम्स हैं? 35। और सर इसके बाद मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर आप सेलिना कराएंगे या फिर इसी का नेक्स्ट चैप्टर? सेलिना ओके सर। बहुत करवा दिया मैंने, परिधि का काम 5 चैप्टर्स करवा दिए, बहुत होते हैं, है ना परिधि? हाँ सर। स्कूल वाले तो पूरा मंथ लगा देंगे, सर कुछ अभी ज्यादा ही लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं हुआ है, वो पहला वाला चैप्टर उनका। अच्छा, वही नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक? हाँ सर। क्या बात है। तो आंसर देती है स्कूल में कि नहीं देती? सर देती हूँ। देती है, चलो वेरी गुड। मार्क्स कम आ गए ना, मैं कानपुर पहुंच जाऊंगा परिधि, कान पकड़ने के लिए तेरे, सर समझे? नहीं आएंगे। वेरी गुड। A man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meter from a lamppost and casts a shadow of 5.4 meter on the ground. Find the height of the lamppost. ये सम मुझे कौन करवाएगा? परिधि चल तू ही करवा। A man 1.8 meter high stands at a distance of 3.6 meter from a lamppost. ये लैंप पोस्ट है इतना बड़ा, यहाँ पे बल्ब लगा है या ट्यूब लगी है। क्या लिखा है? मैन 1.8 मीटर हाई स्टैंड एट ए डिस्टेंस, एक आदमी खड़ा है, उसकी हाइट है 1.8 मीटर, जो लैंपपोस्ट की हाइट थी वो है 3.6 मीटर। कास्ट ए शैडो ऑफ 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये सॉरी, ए मैन 1.8 मीटर, सॉरी ये नहीं 3.6, ये 3.6 है डिस्टेंस ऑफ। कास्ट ए शैडो 5.4 मीटर, ये उसका शैडो बन गया, लाइट पड़ेगी उस पर, शैडो यही बनेगा ना, 5.4 मीटर ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। नेमिंग कर दो, कर दी। हाउ वी कैन फाइंड ए बी? सर ना बोलना नहीं। सर मैं बोल नहीं रहा है, पूछ रहा है। हाँ जी, सर ये शैडो लैम्प पोस्ट की फॉर्म हुई है या फिर ये मैन की फॉर्म हुई है? लैंप पोस्ट की कैसे शैडो फॉर्म हो जाएगी बेटा? ओके। सर बोलो। ये थोड़ा डायग्राम समझ में नहीं आया, आप एक बार समझा दीजिए। आपको शैडो तो पता है ना? हाँ। मोटी, तेरे पीछे बल्ब लगा है ना? लगा है पीछे, हाँ लाइट लगी सर, हुई है ना? लगा है लगा है। वो लाइट तेरे पे पड़ेगी तभी तेरी शैडो बनेगी। यस सर। रोहिन, यस सर। नीचे कोई देखो, अभी ये शैडो दिख रही है ना, लाइट इस साइड से, यस लाइट सर। पड़ी तो इसकी शैडो बन गई, पीछे बन रही है ना, देखो हाथ की, यस सर। ऐसे। अब इसकी बनेगी क्वीन शैडो? नहीं, नहीं बन रही।
पर थोड़ा अंधेरा करिए फिर लाइट, टॉर्च करिए। ओ नहीं छोड़ो, लाइट यहाँ पे पड़ेगी बेटा, तभी वो नीचे आगे शैडो बनेगी उसकी, ऑब्जेक्ट की। साइंस कम कर पड़ता है तू, साइंस को हाथ लगाता है कि नहीं लगाता? रिफ्लेक्शन शैडो वाला चैप्टर किया नहीं? सर क्या है? किया है, फिर याद होना चाहिए। आगे सर बनेगी कि कितना बता लैंप रहा पोस्ट की कैसे शैडो बन सकती है? लैंप पोस्ट के ऊपर बिल्कुल बल्ब लगा हुआ है। सर पर लैंप पोस्ट की तो सनलाइट से बनेगी ना। सनलाइट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, लैंप लगा हुआ है, लैंप से उसकी शैडो बनेगी। लैंप का मतलब बल्ब लगा लगा दो। सन तो इन्होंने बोला ही नहीं इसमें कहीं पे। यस सर। ठीक है, हाँ जी परिधि, हाउ वी कैन फाइंड ए बी? सर इसमें तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। ना हो कोई और मेथड यूज करो फिर। चलो हिंट दे देता हूँ। सर पहले हम लोग सीई निकाल लेते हैं। सी क्या क्या करेगी सी निकाल के? हमने हाँ। ये थोड़ा फाइंड करना है, हमने तो ए बी फाइंड करना है। हम्म। ये टोटल 9 आ गया। हाँ। ठीक है, सोचो क्या करें क्या करें क्या करें। नहीं चला दिमाग? संभवी, व्हाट वी कैन डू? तेरा छोटू सा ना भाई मन्नत ऐसे घूर घूर के जा रहा है तेरी तरफ देख के। सर अगर हम सीई फर्स्ट कर ले तो होगा। नहीं बेटा, कुछ और सोचो, हिंट नो। सर और एक होगा शायद। ये जो सी से एक पॉइंट ये वाले लाइन पे होगा, ए बी पर, ऐसे टाइप का। नो 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 नो। नहीं। परिधि, सी डी अपॉन डी अच्छा, क्या थीटा होगा? से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan दैट होगा। इज tan थीटा। थीटा फर्स्ट। ए बी अपॉन बी क्या होगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan tan हाउ 90 मच? 90। सर थीटा। हाँ, अब tan थीटा दोनों में कॉमन हो गया। बड़ा गंदा सम था, दिमाग में नहीं आता कि क्या कि एंगल कोई दिया ही नहीं हमें, हम क्या करें। बट ए बी अपॉन बी की वैल्यू वही आएगी, सी डी अपॉन डी की वैल्यू भी वही आएगी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सर एंड सेकंड। हाँ जी, सर ये इक्वेशन कैसे आया, कैन यू एक्सप्लेन? क्या? एक मिनट बस, मुझे एक बार सॉल्व कर देने दे। डीई की वैल्यू बेटा, सी डी 5.4। सॉरी सी डी 1.8 अपॉन 5.4, ए बी एक्स अपॉन बीई 9। बच्चे ये एंगल नहीं था ना हमारे पास, रिदान? यस सर। इस स्मॉलर ट्रायंगल में आ जाओ पहले, राइट एंगल में। मैंने उसको थीटा ऐड कर लिया, एंगल को। इस थीटा की अकॉर्डिंगली व्हाट इज सी डी? दैट इज अ परपेंडिकुलर। यस सर। व्हाट इज डीई? दैट इज अ बेस। सी डी अपॉन डीई, पी अपॉन बी, यस सर। दैट इज किसके इक्वल होता है? टेन के। टेन कितना एंगल है? थीटा है, टेन थीटा आ गया। उसके बाद आ जाओ बड़ी ट्रायंगल में, बिगर ट्रायंगल ए बी ई में। ए बी परपेंडिकुलर, बीई बेस, यस सर। अगेन पी अपॉन बी, और एंगल कौन सा होगा? ये वाला यूज होगा ना। tan थीटा। अब देखो टेन थीटा टेन थीटा की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड पहले साइड भी इक्वल होगी, बस। ठीक है, इस सम पे ओके बच्चे सर। इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। और फर्स्ट डे ही मैंने बताया था, जो सम बाकी सम से डिफरेंट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ we will reach on question number 30th.
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो मैं स्ट्रेस दे देता होता हूं जहां डिप्रेशन आ जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, डिप्रेशन किसका, टॉप एंड बॉटम का, तो मतलब टावर क्या होगा, क्लिफ से स्मॉलर होगा। ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60, height of tower is given, find the height of cliff, distance between the cliff and the tower. From the top of a cliff, ये क्लिफ बना दी। The angle of depression of top and bottom of a tower are observed to be 45, एक टावर बना लिया। क्लिफ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, ये टावर है, ए बी इज द क्लिफ, सी डी इज द टावर। क्या बोला उन्होंने, इसके टॉप से, पहले टॉप बोला है, टॉप का एंगल, और बॉटम, बॉटम क्या होगा, डी पॉइंट, यहां बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। डिप्रेशन बोला है, एंगल यहां मार्क करने पड़ेंगे, आर 45 एंड 60, दिस इज 45 एंड दिस इज 60। सर ये डायग्राम आपने क्या बना दिया? डायग्राम जो है वही बनाया, ये क्लिफ मुझे है, समझ नहीं आया। क्या ये क्या है, ये हाइट हाइट है, क्लिफ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से टावर के टॉप को देखा, ये टावर के बॉटम को देखा, बॉटम कौन सा है टावर का, डी पॉइंट है ना, उसी ये पॉइंट से ये। आधे रुको ना। दीज आर, अब उन्होंने क्या लिखा है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर, ये हाइट हमें गिवन है 20 मीटर, देन बीई इज आल्सो 20, फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, क्लिफ की हाइट को हम एक्स लेट कर लेते हैं, मैंने देन व्हाट इज ए, सर AE हाँ ए ई, 20 माइनस एक्स। है 20 बड़ा है ना एक्स से, हाँ अच्छा 20 ये इतना क्या है, एक्स इतना है। एक्स माइनस 20। तेरी तारीफ क्या कर दी तो उल्टी चल पड़ी है। इसको y लेट कर लेते हैं, देन दिस इज आल्सो y। यस मैंने यहाँ पे टू राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, सर, एक तो है ABD, हाँ एक है AE बाय। ए वाई, वाई कहाँ से आ गया, ए सी, AEC, सॉरी सर, वो बाय थोड़ा कंफ्यूजन कर रही है। मेरे को लगता है AEC तेरे को तंग कर रहे हैं घर वाले, है ना। नहीं सर, वो बाय थोड़ा क्या वो वहीं लिखा था तो ऐसा लगा AEC। ए सी, ये तो वाई लेंथ लिखी है ना इसकी। हाँ 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 जी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड है, सर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉमन कॉमन साइड कोई नहीं है, नहीं, बट इक्वल तो है, कौन सी बाय इक्वल है, बाय बाय। वाई। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से वाई फाइंड करना है, पहले इन ट्रायंगल AEC, CE अपॉन AE, इन राइट एंगल ट्रायंगल। वो तो लिख देना, अब कुछ तो खुद लिख लेना, सारा कुछ ही मैं लिखूं। लिख लेंगे सर। CE upon AE, that is cot how much, 45, CE is y, AE is x minus 20 and cot 45 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x minus 20 आ गई, सर टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ ABD राइट एंगल ट्रायंगल में, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, अगेन BD अपॉन AB, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना सेकंड फंडा कि कॉमन और इक्वल, अभी तक जो सम किए थे वहां कॉमन साइड आ रही थी, बट अभी क्या आ गई है हमारे पास, इक्वल साइड आ गई है, अगेन कॉट 60, BD की वैल्यू y, AB की वैल्यू x, कॉट 60 होता है 1/√3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, x/√3 आ गई। सेकंड,
from sir. equations first and second. y इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल Equal. होगी, दैट इज x minus 20 Minus 20 is equal to x upon root 3. root 3x minus 20 root 3 is equal to x वाली टर्म एक साइड पे, root 3x minus x is equal to 20 root 3, यहाँ से x कॉमन, root 3 minus 1 20 root 3, x की वैल्यू 20 root 3 root 3 अपॉन upon root 3 minus 1. सर रेशनलाइज कर लेंगे वेरी गुड, अपन root 3. 20 root 3 को root 3 से किया 60 प्लस 20 root 3, नीचे बेटा a minus b a plus b a square minus b square 3 minus 5, minus 1. ऊपर से ना एक काम करो 20 कॉमन ले लो, इजी रहेगा फिर, plus root 3 upon 2. x की वैल्यू 10 t plus 1.732, 32. x is 10 10 into 4, point. we get 47.32 मीटर। पहला आंसर आ गया हमारा, ये तो कैलकुलेशन पार्ट ही है सारा। Yes, sir. अब उन्होंने आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिफ एंड टावर, ये y भी फाइंड करना है, यहाँ जो x की वैल्यू है यहाँ फिल कर देना, यू गेट हाँ, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए, 27.32. वेरी गुड। परिधीना पूरी टेंशन में है, हाय सर कितना टाइम लगाएंगे क्लास, और नो सर, सर तो भाग रहे हैं फटाफट, है ना, नहीं बच्चों की जान लेंगे सर, तो इतना काम दे देते हैं, कुछ नहीं होता, चलेगा, ठीक है, और इसमें आगे निकल जाओ, बस एक ही फंडा, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई धक्का मारेगा ना कोई गिराएगा, अगर हम खुद भी गिर गए फिर भी संभल जाएंगे, उठ के फिर भी आगे निकल जाएंगे। ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, नेक्स्ट सम, a pole of height 5 meter is fixed on the top of a tower. The angle of elevation on the top of the pole is observed from a point A on the ground is 60 degree, and then ये तो अच्छा, and the angle of depression of point A from the top of tower is 45. Find the height of the tower. अब इन्होंने खुद लिख दिया कि रूट 3 की वैल्यू ये यूज करनी है। A pole of height 5 meter is fixed on the top of a tower. टावर के ऊपर, लाल किले के ऊपर एक झंडा का पोल लगा दिया। The angle of elevation of the top of pole as observed from point A on the ground is 60, and the angle of depression of the point A from the top of tower is 45. Find the height of the tower. सबसे पहले ये टावर बना दिया मैंने, इसके ऊपर पोल लगा दिया, ए बी इज द पोल, नहीं यहां ए भी नहीं ले, ए नहीं ले सकते, सी ले लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला ग्राउंड पे है ए पॉइंट, खुद बोला हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ये हाइट, पोल की हाइट गिवन है हमें 5 मीटर, बीसी इज गिवन 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ए से किसको, टॉप ऑफ पोल कौन सा है रिदान, Sir, top of pole is C. yes, very good, this angle is given 60 degree, and angle of depression of point A पॉइंट का डिप्रेशन कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कौन सा है, Sir, point B. यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे, यहां 30 नहीं सॉरी 45 दिया है, ये एंगल 45 हो जाएगा, देखो गंदी सी फिगर, इसका कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं करना हमने, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसको एक्स लेट कर लो, क्योंकि टावर तो ओनली बीडी है, परनीत क्या करें हम,
what we can do? सर हाँ जी, सर हमें फाइंड एडी करना है कि एक्स? एक्स। देखो, जो चीज फाइंड करनी होती है मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। एक्स का लेट कर दिया ना, तो एक्स फाइंड कर दो बस। ओके सर। सर सेकंड फंडा हिंट दे दिया, और बता। सर कॉमन एडी है तो एडी को हम वाई ले लेंगे। बस फिर हो गया। अब क्या रह गया? पहले स्मॉलर ट्रायंगल में y अपॉन ये एक्स इज कॉट 45। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी, क्योंकि कॉट 45 1 होता है। बिगर ट्रायंगल में ये पूरी साइड 5 प्लस एक्स हो जाएगी। y अपॉन, मतलब मैंने पूरा ट्रायंगल वगैरह नहीं लिखा, वो खुद लिखना। कॉट 60, y की वैल्यू 5 प्लस एक्स अपॉन √3। कॉट 61 बाय √3 होता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन फाइंड x नाउ। हो जाएगा। यस सर। और अगर फिगर में ये लाइन ऐसे ड्रॉ करके 45 ना लिखा, चाहे सारा सम सही है, फिर भी क्रॉस लग जाएगा। यहाँ एलिवेशन बोला था, वहां पे नहीं ड्रॉ करनी, क्योंकि टॉप का, पोल के टॉप का एलिवेशन बोला था, बट इसका डिप्रेशन बोला था। समझे बच्चे मेरी बात? यस सर। Yes. यस सर। मक्खी पता नहीं कहां से आ गई अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, जिसको ना समझ आए ना वो पूछ लेना। प्रिया, स्पेशली यू। ओके, यस सर। क्योंकि बाकी तो मिक्सअप हो चुके हैं। मुझे सर तेरी प्रॉब्लम ही लग रही है थोड़ी सी। हाँ जी। अभी आपने कहा मक्खी कहाँ से आ गई? वो मक्खी फिर रही थी यहाँ पे, मेरा तंग कर भाई रही कह थी। रहा दरवाजे से। हैं? मेरा भाई कह रहा दरवाजे से। चलो, ऐसी ना, तेरे भाई जैसा लड़का था मेरे पास, आरव। कहता सर, मतलब यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन क्लास लगाता था तब था, मतलब 2000, कोरोना के बाद कुछ टाइम पीरियड खुला था ना, उस टाइम था। हाँ। कहता सर, सारी क्लास में मतलब 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी ऑफलाइन। सर, मुझे ना, मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। क्या? कहता मैं दीवार के आर पार देख सकता हूँ। ये दीवार है, दीवार के उस साइड भी देख सकता हूँ। सारे हैरान बच्चे कि ये कैसे देख सकता है। तो मैं बता कैसे? कहता मोरी से। छेद में से, कि दीवार में छेद है उसमें से। पंजाब में मोरी बोलते हैं ना उसको, छेद को, पंजाबी में। वही हाल इसका है कि दरवाजे से। A vertical pole and a vertical tower. Oh, a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, from the top of pole, the angle of elevation बोला है, तो means pole is smaller. From the top of the pole, pole के टॉप से, मतलब पोल क्या हो गया? टावर से स्मॉलर हो गया, तभी ऊपर जाएगा ना उसके टॉप का। Elevation of top of tower is 60 and the angle of depression of foot of tower is 30. Same question? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ द हाइट ऑफ पोल इज 20। ये टावर बना दिया, ये मैंने पोल बना दिया। पहले क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से, इस पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60। दिस एंगल इज गिवन 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ये होगा, इसी पॉइंट से टावर के फुट का ये एंगल 30 दिया है, मतलब ये भी 30 हो गया। नेमिंग कर दो अपनी तरफ से, ए बी सी डी ई। अब हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं।
हम ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, ये और ये भी यूज कर सकते हैं। मैं कौन सी करूंगा? ये दोनों करूंगा जो जिनमें टिक लगा दी। इसको भूल जाओ, पिछले पार्ट को। ठीक है, अब उन्होंने और क्या दिया है? इफ द हाइट ऑफ पोल इज 20, ये 20 गिवन है, तो ये भी 20 हो जाएगी। हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, दैट इज टेकन एज एक्स। तो ए बी की लेंथ क्या होगी प्रिया? यस सर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी? x-20। एक्स माइनस 20। तो घर में भी ऐसी बोलती है, स्लो स्लो है नहीं। प्रिया? नहीं, इसको वाइलेट कर लो, इसको वाइलेट कर लो। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में से y की वैल्यू फाइंड करो। y अपॉन x माइनस 20, दैट इज कॉट 60। x माइनस 20 कॉट 60 इज 1/√3। फर्स्ट इक्वेशन, इस राइट ट्राइंगल में y अपॉन 20, दैट इज अगेन कॉट 30। y की वैल्यू 20, cot 30 is √3। Second, from equation first and second, left hand side is equal, then right hand side is also equal। ये समझ आ जाएगा ना क्या लिखा है? सर सिग्नेचर लग रहा ये लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। है मालूम से। x minus 20 is 60, x is 80। 80 आ गया, that is the height of tower। 33rd, 34, 35, ये खुद ट्राई करना। जैसे 35th का मुझे करवाना पड़ेगा, तो फिर भी एक बार ट्राई करना। ठीक है, करोगे? मेरा ना न्योता आ रहा है बाहर से, बुला रही है। चलो मिलते हैं कल। कल का मॉर्निंग का टाइम 10। ओके सर। ओके ठीक है, सर। सर कुछ वैसे अलग आप कब रखना। से चैप्टर स्टार्ट कराएंगे? कल सलीना में से देखते हैं कौन सा करें। सलीना का फर्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं, जीएसटी। सर थोड़ा फर्स्ट सेकंड बाद में नहीं कर सकते? क्यों? सर थोड़ा बुक सर मैंने भी किसी की ली है, तो सर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ही नहीं। मैं भेजूंगा पीडीएफ हाँ बना ठीक के, है सर, ठीक है सर, ठीक है। टेंशन ना लो। सारी बुक्स की टाइम पीडीएफ मिलेगी तुम्हें। ओके, हाँ सर हम लोग चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के सामने टेबल बना के हैं उनमें। जैसे तुम्हारी बुक में था, टेबल्स नहीं थे, वहाँ पे प्रॉपर टेबल बना के हैं, इस आइटम पे इतना, इसमें इतना, इतना डिस्काउंट, इतना जीएसटी, इस टाइप से थोड़े डिफरेंट सी हैं। ठीक है, यस सर, मेथड वही है, मेथड मैंने तो तो सेम ही समझा रहेगा। ही नहीं है। यस एस चंद में एक दो सम ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ना सलीना में है वो, ना उसमें एमएल अग्रवाल में मिलेंगे वो। एस सर एस इसमें चंद में सब मिलेंगे। मिक्स्ड है। एस चंद में थोड़ नहीं, एक दो सम है। जैसे ना नेट क्रेडिट होता है, नेट डेबिट भी होता है, कि अगर कोई लॉस हो गया शॉपकीपर को, तो नेट जीएसटी जो निकालते थे वो गवर्नमेंट से वापस लेगा। ठीक है, दैट इज क्रेडिट एंड डेबिट, वो चीज आ जाती है, वो आएगी एस चंद में। ओके, अब 3-4 चैप्टर हम सरीना में से करके फिर एस चंद में से करेंगे, ओके या ऐसे सर। करेंगे। एक हम और भी कर सकते हैं कि अगर सरीना में से जैसे फर्स्ट 3 चैप्टर इसमें से किए हैं, 4th चैप्टर हम सलीना में से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ऐसे करना है तो। इससे ये होगा कि हमारा एक टाइप से सारा सिलेबस हो जाएगा, फिर जो चैप्टर जिस बुक में से रह जाएगा वो उसमें से करते रहेंगे। यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं, बताओ सर फिर सुजेशन दो, क्या करना सर है? हम ऐसे भी तो पहले कर सकते हैं सिलेबस खत्म कर लेते हैं। सर। सिलेबस, हाँ जी बेटा। सर जैसे कि अभी हमने जो चैप्टर एमएल अग्रवाल में करे हैं, वही सेम चैप्टर 3 अगर किए हैं, सलीना से 3 किए हैं, करेंगे, 3 कर लिए हैं। तो अगर सर वही तीन सेम तीन तो चैप्टर पूरे में अगर चलते हैं। सलीना से करेंगे हाँ जी, सर 3-3 करके चलते हैं। 3 करके चलते हैं कि फर्स्ट 3 करें अब उसमें से, कि तो नेक्स्ट 3 करें? सर जैसे बताओ। जो अभी एमएल अग्रवाल से करें, अगर वही सेम सलीना से करेंगे तो अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। नहीं, वो तो वो भी कर लेंगे, वो नहीं है टेंशन, वो भी हो जाएंगे।
टाइम हमारे पास, देखो जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उस स्पीड से चाहे 10 बुक्स कर लो पूरे साल में, हाँ सर, टाइम तो है। ठीक है ना? अरे आप तो सर मुझे सेशन भी करना। स्टार्ट नहीं हुई अभी तो। पता है मुझे। टेंशन, मतलब तुम्हारे ना आंसर्स भी याद हो जाएंगे कई क्वेश्चंस के, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ओके, तो अच्छी बात है, बोर्ड्स में एक ही बुक से तो आता नहीं तो है। हम ऐसे करेंगे, कल हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेलिना में से, यस सर। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सॉरी, लीनियर इक्वेशन। यस सर। ठीक है, चैप्टर भी डिफरेंट हो जाएगा, बोर भी नहीं होगे। हाँ, ऐसे ही करके एक बार जैसे सारा सिलेबस खत्म, मेरे को लगता है कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं 1.5 मंथ में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। उसके बाद जो जो चैप्टर जिस बुक में से रहते हुए वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे अभी 3 चैप्टर सेलिना में से कर लेंगे, फिर 3 चैप्टर हम एस चंद में से कर लेंगे, फिर 3 एम एल अग्रवाल में से कर लेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले बाकी देखेंगे, अगर नहीं वैसे अच्छा लगा तो शुरू से कर लेंगे, फिर एक बार करके देखते हैं। यस सर। ओके, ओके चलो सर। मिलते हैं कल। यस सर। थैंक यू सर। बाय बेटा। जी सर। थैंक यू सर।